تے مناؤ خوشی نوے سال دی رب کیتی ہے رکھوالی ساڈے وال وال دی گیت گاؤ تے مناؤ خوشی نوے سال دی رب کیتی ہے رکھوالی ساڈے وال وال دی او دیاں محبتاں نے رہیاں ساڈے نال او دیاں محبتاں نے رہیاں ساڈے نال نواں سال رج کے مناؤ نواں سال رج کے مناؤ نواں سال رج کے مناؤ. پاکستان کے مستقبل کے ساتھ آج ہم موجود ہیں اور ان سے باتیں کر رہے ہیں. علی معین نوازش، ملالہ یوسفزئی اور ستارہ بروج اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب صحیح ہے نا؟ ہاں بالکل. اچھا لیکن یہاں پہ ایک بات ہم ضرور کرنا چاہیں گے، وہ یہ کہ آپ جیسے اور بھی بہت سارے بچے ہیں. عرفا کریم ہماری ایک بچی ہے، وہ بہت بیمار ہے اور ہم سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے اور خیریت سے وطن واپس آئے اپنے گھر اور ٹھیک ہو جائے. اچھا آپ سے جو ابھی دانش نے سوال کیا تھا کہ آرٹیکل جو انہوں نے لکھے ہیں، مطلب جب دہشت گردوں کا راج تھا سوات ویلی میں، پورے خیبر پختونخوا میں تقریباً تھا، آپ نے کیا 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 اور کیسے اپنی آواز دوسروں تک پہنچائی؟ کتنا مشکل تھا آپ کے لیے؟ تو جب دہشت گردی پھیلنے لگی اور جب مطلب تو اس وقت سے میں نے بولنا شروع کر دیا میڈیا پہ، انٹرویوز دیے مختلف، اور جب ایک چینل کو انٹرویو دو میڈیا سے تو کانٹیکٹ کس طرح ہوا؟ تو میڈیا اس وقت رائے ڈھونڈنے کے لیے وہ نکل پڑا تھا. اچھا. میڈیا کو کچھ ایسے لوگ چاہیے تھے جو سچ بتا سکے. ٹھیک ہے. کوئی اس وقت تیار نہیں تھا، تو ہمارا اسکول جو تھا ہم نے اس کو ایک مرکز سا بنا لیا کہ یہاں پہ آئیے، ہم سے رائے لیجئے، ہم بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، ہم سے ہمارے رائٹس کیوں چھینے جا رہے ہیں. تو اس لیے میں نے بہت سارے انٹرویوز میں نے دیے ہیں بہت سارے چینلز کو، اور میں نے میڈیا کو ایز اے ٹول استعمال کیا، کیونکہ میرے پاس نہ کوئی لشکر تھی، نہ کوئی فوج تھا، اور نہ میں نے اس طرح جلسے کے نہ جلوس نکالے. بس میں نے میڈیا کو ایز اے ٹول استعمال کیا، اپنے الفاظ کو اپنے قلم کے ذریعے میں نے آواز اٹھائی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آرٹیکلز لکھے اخبارات میں. آرٹیکل لکھنا بہت آسان ہوتا ہے، کسی ایشو کو اٹھا لو، آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اس ایشو کے بارے میں بات کرنی ہے، اس پہ لکھو اور پھر کسی سے بھی کہو کہ اس کو اخبار والے کے پاس بھیج دو تو ہو جائے گا. یہ کوئی بڑی ایشو نہیں ہے، جب آپ کے دل میں ہونا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے بی بی سی کی ڈائری بھی لکھی، وہ فرضی نام گل مکئی سے میں نے لکھی کیونکہ سچویشن. جی اچھا علی، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، پاکستان میں زیادہ تر افراد غربت کی جو لکیر ہے اس سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے. ایسے میں کیسے ہم ایکسپیکٹ کریں، کیسے امید لگائیں کہ وہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا سکتے ہیں؟ پاکستان میں تعلیم کا مستقبل کیا ہے؟ بڑا آسان سوال پوچھا آپ نے. آئی تھنک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پاورٹی ہے، لیکن جو ہمارا آئین ہے سب سے پہلے وہ گارنٹی کرتا ہے اب فری ایجوکیشن فار آل اپ ٹو 16 ایئر فیج. یعنی اگر کسی بچے کو نہیں مل رہی، ہی کین ایکچولی ٹیک دا گورنمنٹ ٹو کورٹ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آئین کا جو آرٹیکل 25 سے 25A، ٹھیک ہے، وہ گارنٹی کرتا ہے. سیکنڈلی آئی تھنک اب جب ماڈرن دور میں ہم آ رہے ہیں، سوری، تعلیم دینا از ناٹ مچ اباؤٹ بجٹ، اٹس اباؤٹ کمٹمنٹ. آپ کا اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمیں شیئر بڑھانا پڑے گا ایجوکیشن بجٹ میں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو ایجوکیشن بجٹ ابھی دیا جاتا ہے وہ بھی پوری طرح استعمال نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اور اب کمٹمنٹ نہیں رہی. اب سب سے بڑا جو پرابلم ہو گیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن ڈیوالو ہو گئی ٹورڈز دا پروونسز، کوئی آپ کی سینٹرل ایجوکیشنل اتھارٹی نہیں رہی. تو اب اس وقت اگر ایجوکیشن ٹھیک کرنی ہے کسی نے، اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ وہ سینٹرل اتھارٹی دوبارہ بنائی جائے. وہ دیٹ ہیز ٹو بی تھرو پارلیمنٹری ریزولوشن. اگر نہیں بھی بنانی تو پرائم منسٹر ایک کمیٹی بنائیں جس کے اندر چاروں صوبوں کے پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کو اکٹھا کریں. کریکولم ٹھیک ہے ہمارا، لیکن اب ہمیں ایگزامینیشن بورڈ ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. کہ کوئی دنیا میں بہت کم مثالیں ہوں گی جہاں جیوگرافک بیسس پہ آپ مختلف امتحان دے رہے ہیں. آپ پنڈی میں رہ رہے ہیں، آپ مختلف امتحان دے رہے ہیں. آپ کراچی میں رہ رہے ہیں، آپ مختلف امتحان دے رہے ہیں. پورے ملک میں، اور آپ پنجاب میں تو آپ دوسری کتابیں پڑھ رہے ہیں، آپ سندھ میں تو دوسری، ڈفرنٹ کر دیا. تو ضروری ہے کہ ایک بورڈ ہو، ایک کریکولم ہو جو نیشنلی اویلیبل ہو، بے شک 2-3 ہو جائیں تاکہ کمپٹیشن ہو. تو بکس لکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں پوری دنیا میں اچھی کتابیں ہیں، آپ نے بس انہیں لائسنس کرنا ہے اور آپ نے پرنٹ کرنا ہے. بات کمٹمنٹ کی ہے. آل کمز ڈاؤن ٹو پولیٹیکل ول. ایجوکیشن کب کسی حکومت کی پرائیورٹی نہیں ہوئی، نہ لگتا ہے پرائیورٹی ہوگی. اور
اب اس سلیکشن میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ جب یوتھ ووٹ آگے آ اس پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں. ایک کال ہمارے ساتھ ہے اور ان کو شامل کر لیتے ہیں. ہمایوں مرزا نے ہمیں کال کیا میرپور آزاد کشمیر سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ہمایوں, جیو پاکستان. وعلیکم السلام دانش, السلام علیکم. کیا آواز ہے یہ. کیسی ہے دانش؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہمایوں. سب لوگوں کو میرا سلام. وعلیکم السلام ہمایوں, آپ اتنا خوش کر رہے تھے میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو. دانش آج آپ نے اتنی پاکستان کی آج یوتھ کو بلا کے پاکستان کی اتنی پیارے نوجوان بچے بیٹھے ہیں, ملائنا بیٹھی ہے, ستارہ بیٹھی ہے اور معین نوارس بیٹھا ہے, ٹیلنٹ ہے آج بیٹھا ہے. آج پورا پاکستان پورا کشمیر دیکھ رہا ہے ان بچوں کو. ہمایوں کیا کہنا چاہیں گے ان تینوں بچوں کے لیے؟ میں ان کے لیے ایک شعر کہوں گا اقبال کا. ارشاد. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر کہوں گا ان کے بچوں کے لیے. ارشاد ارشاد. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرگیز ہے ساکی. بہت شکریہ ہمایوں مرزا کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ. اس طرح ہمیں کوئی کال کرتا ہے تو اور یہ حقیقت ہے, صحیح بات ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. اور یہ زرخیزی ہم دیکھ رہے ہیں, نہ جانے اور کتنے ایسے بچے ہیں جو کہ سامنے نہیں آئے لیکن اپنے اپنے طور سے وہ پاکستان کا نام روشن بھی کریں گے اور اپنے اطراف میں خوشیاں بھی بکھیریں گے. اچھا ستارہ سے بھی اب بات کرتے ہیں. ستارہ بچی کافی دیر سے بور ہو رہی ہے. ہاں ستارہ, بورنگ سے مجھے یاد آیا, آپ گھر پہ خود پڑھتی ہیں, پرائیویٹلی پڑھ رہی ہیں, آپ اسکول جاتے ہیں تو آپ کے فرینڈز بنتے ہیں, آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں, تو آپ یہ اسکول لائف مس نہیں کرتی ہیں؟ I have never missed that because کیونکہ میری جو فرینڈز ہیں وہ تو ابھی بھی ہیں, لائک ہم کھیلتے ہیں تو ابھی بھی کھیلتے ہیں, بٹ جو سوشل لائف, as I said before, I don't believe in so much of social life. It's a waste of time. Good. When you come at this stage, each and every minute آپ کا جو ایک لمحہ آپ کا قیمتی ہوتا ہے. بہترین میسج. اچھا ستارہ یہ بتاؤ کہ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں اور میں سب سے بڑی ہوں اور آخری 2 ٹوینز ہیں. اچھا ستارہ آپ بتائیں کہ کوئی آپ کے جیسا ہی جینیس دوسرا بھی ہے فیملی میں؟ Every child is genius but in his or her own field. ماشاءاللہ. وہ آرٹس میں انٹرسٹ رکھتی ہے, she wants to become a doctor. تو ہر چائلڈ میں لائک اپنا ایک جذبہ, ایک جنون ہوتا ہے. تو I can't say, میں تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں گی ہر ایک کو, تو that's unfair. بھائی ستارہ کی اس بات سے تو بالکل اگری کرتے ہیں کہ ہر بچے میں ایک اسپیشل کوالٹی ہوتی ہے. ہاں کوئی بچہ پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر دوسری کوالٹی ضرور ہوں گی جو وہ جا کر کر سکتا ہے اور کامیاب انسان بن سکتا ہے. کامیاب بننا امپورٹنٹ ہے. یہ جو بات تھی کہ میں سوشل لائف اتنا زیادہ انجوائے نہیں کرتی, ان کا پرسیپشن ہے, اتنا موٹیویٹڈ ہونا اچھی بات ہے, لیکن پارٹ آف گروئنگ اپ جو بڑے ہونے کا حصہ ہوتا ہے وہ تھوڑی سی تفریح بھی ہوتی ہے, اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کرنا بھی ہوتا ہے, وہ انجوائے کرنا بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہ بچپنا واپس نہیں آئے گا. علی کو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت انجوائے میں نے آپ کو بتایا میں صرف 3 یا 4 آورس پڑھتی ہوں, باقی میں کھیلتی ہی ہوں. سکون مل گیا مجھے. اچھا اب ہم ملالہ سے بات کرتے ہیں. لیکن میں سے بات کرنے سے پہلے ایک کال آ گئی ہے ہمارے پاس. شکیل ہے کراچی سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شکیل, جیو پاکستان. السلام, جیو پاکستان اور تمام جو ہے نا بیٹھے ہوئے مہمان نے تینوں بچوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اتنا حوصلہ دے کہ پاکستان کے رہنے والے تمام خاندان کو ایسے ہی اولاد اللہ رب العزت فخر دے تاکہ اس سے ہماری پوری دنیا میں نام روشن ہو سکے. ان تینوں بچوں پہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں ایسے بہادر بچوں سے میرا ملک کا مستقبل اور میرے ملک کے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بچوں کے لیے ہم تمام پاکستانی مل کر دعا کریں کہ اللہ ایسے ہی بہادر بچے, نیک بچے پیدا کرے. بیٹا ملائلہ اور ستارہ, آپ کو بالخصوص ہم تمام لوگوں کا سلام قبول ہو اور اب ہم تمام لوگوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بہادر بچے ہمیں عطا فرمائیں. جیو پاکستان. اسی دعا کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے, اپنی گفتگو جاری رکھیں گے انہی تینوں کے ساتھ. جیو پاکستان.
वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है कि कल हमने देखा था कि कोयटा में जो धमाका हुआ था, उस धमाके से तबाह होने वाली इमारत के करीब जो कि अरबाब करम खान रोड पर है, वहां से 5 बम बरामद हुए हैं जिनको नाकारा बना दिया गया है। लेकिन इस वाकये की मजीद तफसीलात हम जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे सलमान अशरफ से। अस्सलाम वालेकुम सलमान, क्या सूरत हाल है वहां पर इस वक्त और ये बम कब बरामद हुए? वालेकुम अस्सलाम उज़्मा। अरबाब करम खान रोड पर जो गुज़श्ता रोज एक धमाका हुआ था साबिक वज़ीर आला के बेटे के घर पर, वहां पर सूरत हाल ये थी कि मुकम्मल तौर पर पुलिस और दीगर कानूनी नाफिज करने इदारे के एहलकार आए थे, लेकिन बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मुकम्मल तौर पर इलाके को स्वीप नहीं किया था। और अब से कुछ देर कबल ही वहां पर चाकर खान मैदानी है जहां से 5 बम बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक करीबी इमारत है, उसकी छत से भी 2 दस्ती बम मिले हैं और मजमूई तौर पर इनकी तादाद 7 बताई जा रही है। तो 7 बम मिले हैं जिसे नाकारा बना दिया गया है। अब इसके बाद मजीद जो है वहां पर सर्चिंग का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान अशरफ जी। सलमान अशरफ से हमने बात करी, अब हम मलाला से बात करते हैं। मलाला, कामयाब होना जरूरी नहीं है। हाल ही में मलाला को कौमी अमन अवार्ड भी दिया गया वज़ीर आज़म की जानिब से। बहुत बड़ी कामयाबी है मलाला आपके लिए, दुनिया आपको जानती है। अब कामयाब होना बड़ी बात नहीं है, इसको बरकरार कैसे रखोगी? अब जब मुझे इतनी शोहरत मिली है, इतने लोग मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो मतलब इनको जो हम दे रहे हैं अब इसने कुछ करना है, तो मैं खुद समझती हूँ अगर लोग मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं इनके लिए कुछ कर सकती हूँ, मैं इनकी भलाई के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो आई मस्ट। क्योंकि इतनी अगर कामयाबी मिली है, इतनी शोहरत मिली है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अब पूरा करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करूँ और मैं साथ में एक मलाला एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से एक तंजीम बना रही हूँ ताकि मैं उन बच्चियों के जो कि घरों पे बेटी हैं या दूसरे घरों पे वो काम करती है, गरीब ख़ानदान है, पढ़ नहीं सकती बच्चियाँ, वो तालीम से महरूम है, उनके लिए मैं चाहती हूँ कि उनकी एडुकेसी और सर्विस डिलीवरी के लिए मैं दोनों के लिए काम करूँ। ये 3 बच्चे तो हमारे साथ है, इन पर हमें फ़ख्र है, लेकिन एक बच्ची आज हमारे साथ हो सकती थी जो हमारे साथ नहीं है, इरफा करीम। वो बहुत बीमार हैं और अचानक से उनको मिर्गी का दौरा पड़ा और अब वो कोमा में हैं, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। इरफा करीम के लिए सबको दुआ करनी है क्योंकि वो भी हमारी कौम का मुस्तकबिल है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी से सही हो जाए और फिर अगर हमारे अगले शो में वो भी आ जाए। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि अगर हम 10 सेकंड की खामोशी उनके लिए इख्तियार करें ताकि हम सब दुआ कर सकें इसमें। इरफा करीम जैसे बच्चे जिन्होंने बहुत जल्द ही अपने मुल्क का नाम इस लेवल तक रोशन कर दिया कि वो बिल गेट्स से मिलने, मेरे लिए ये कम से कम बहुत बड़ी बात है। इस पे ही मजीद अपडेट जानते हैं। अमीन हफीज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अमीन हफीज, कैसे हैं आप? जी दानिश, अल्लाह का बहुत शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। अमीन, इस वक्त क्या हालत है इरफा करीम की, कैसी हैं वो? जी, इरफा करीम रंधावा इस वक्त CMH की इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड में जेर इलाज हैं और डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। इरफा करीम रंधावा इस वक्त जो डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम है, पाक फौज के डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम इसको देख रही है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से कोमे में है और इसकी हालत पहले से बेहतर नहीं हुई। इसको वेंटिलेटर पर लगा रखा है और डॉक्टर्स का और इसके वालिद और इसकी वालदा का ये कहना है कि कौम पाकिस्तान की इस बेटी की सेहतयाबी के लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला इसको जल्द सेहत दे और ये अपने पांव पे चल के अपने घर जाए। जी दानिश, इंशाल्लाह। अमीन, ये भी बताइएगा कोई हुकूमत की तरफ से कोई आया है अभी तक वहाँ पर? पाकिस्तान का असासा है इरफा करीम और इतना नाम रोशन किया पाकिस्तान का, कोई हुकूमती दाखिला नजर आ रही है अभी इसमें?
जी दानिश, आपने बड़ी अहम बात की। ये वाकई पाकिस्तान का असासा है अरफा करीम रंधावा। इसने 1995 में ये पैदा हुई और 9 वर्ष की उम्र में इसने दुनिया भर में पाकिस्तान का डंका बजाया और बिल गेट्स जैसे शख्स ने अमेरिका में खसूसी तौर पे इसको मदऊ किया, इससे बातचीत की, इसको भरपूर ताउन में यकीन दिलाया। पाकिस्तान में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। मीर खलील रहमान फाउंडेशन ने इसके लिए खसूसी अवार्ड दिया। इतनी बड़ी पाकिस्तान की ये बेटी जिसने पूरी दुनिया में 9 वर्ष की उम्र में अपना इतना बड़ा नाम पैदा किया, ये पिछले अब 15 दिन से हॉस्पिटल में जेर इलाज है। हमें बताया गया है कि कोई भी वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से किसी बड़ी शख्सियत ने अभी तक इस बेटी को विजिट नहीं किया, किसी ने इसको देखा नहीं। लेकिन पाक फौज का ये जो हॉस्पिटल है CMH लाहौर, यहाँ की जो डॉक्टर्स की टीम है वो इस पे बड़ी निगहदाश्त किए हुए हैं। इसकी प्रॉपर जो इलाज हो सकता है, दुनिया में एक इंसान, एक डॉक्टर जो मैक्सिमम कर सकता है, वो यहाँ पर तमाम सहूलतें यहाँ पर दी जा रही हैं। इसके वालिदैन इलाज की इन सहूलतों से मुतमईन है। लेकिन जो सवाल आपने किया वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि पाकिस्तान की इस बेटी को देखने के लिए कोई हुक्मरान, कोई वफाकी और सूबाई हुकूमत का कोई नुमाइंदा हॉस्पिटल में उसकी इयादत के लिए नहीं आया। जी दानिश। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। अली, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि बस एक छोटी सी करेक्शन थी, क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ द मीडिया ग्रुप एज वेल, कि मैं कल ही खबर पढ़ रहा था, जंग के अंदर आई थी कि चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरी इमदाद करने की ऑफर की है अरफा करीम को, जो उनके वालिद साहब ने कहा है कि नहीं अब बहुत हमें जरूरत नहीं है। लेकिन आई थिंक वो ICU में हैं और ऐसी सिचुएशन में फैमिली को प्राइवेसी देनी चाहिए और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए हर एक को वहाँ पहुँच जाना, हमें इस मामले में थोड़ा मैच्योर होने की जरूरत है। और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि सब लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं, पूरी कौम उनके लिए दुआ कर रही है। जो हुकूमती ओहदेदारान हैं यकीनी तौर से वो भी परेशान हैं, वो भी दुआ कर रहे हैं और हम भी दुआ कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर उनके वालिदैन, उनके घर वाले कुछ देख रहे हैं तो हम दुआ करते हैं वो बहुत जल्द सेहतयाब होंगी और अपने घर वापस आएंगे। नए साल शुरू होते ही हमें इंशाल्लाह कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी अरफा करीम की तरफ से। सितारा हमारे साथ मौजूद है। सितारा की तबीयत भी ठीक मिले, डाउन है थोड़ी बच्ची। सितारा, मुझे ये बताओ कि साइंटिस्ट बनना है, आप साइंटिस्ट किस उम्र में बनना है भाई, और किस फील्ड में बनना है? As soon as I give my exams, या जितनी जल्दी मैं अपनी एजुकेशन खत्म कर सकती हूँ। और जो फील्ड का है, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एंड मेरा फोकस बेसिकली बायोकेमिस्ट्री पे है। केमिस्ट्री मुझे तो कभी समझ ही नहीं आई सितारा, आपको कैसे समझ आ जाती है? आई डोंट नो, मेरे ख्याल से क्योंकि ये पहला सब्जेक्ट है जो मैंने इतने एडवांस लेवल पर पढ़ा है, क्योंकि केमिस्ट्री का एग्ज़ाम मैंने 9 इयर्स की एज पे दिया था, शायद इसलिए मुझे पसंद है। लेकिन मेरे जो मतलब जिस सब्जेक्ट को मैं दिल लगा के पढ़ सकती हूँ वो सिर्फ केमिस्ट्री है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, हम दानिश को सुबह से जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं पढ़ाई के हवाले से। लेकिन दानिश ने एक अहम मुलाकात की है तुर्की के जो इंटरप्रेटर उनसे, फुरकान हमीद से, और इसी मुलाकात का अहवाल दिखाते हैं। बिल्कुल, ये ना सिर्फ तुर्की के सदर के इंटरप्रेटर है बल्कि वाहिद पाकिस्तानी है जिन्होंने टर्किश जबान में PhD किया हुआ है। इसके साथ साथ वो टर्की में टर्किश जबान सिखाते भी हैं और नुमाइंदे भी हैं। हाँ, उन्होंने PhD कोई मामूली नहीं किया, 100% मार्क्स के साथ PhD किया है। तो डॉक्टर फुरकान हमीद के साथ मुलाकात की, उन्होंने क्या क्या बताया। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर फुरकान हमीद के साथ। इनके साथ बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर फुरकान, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। शुक्रिया बहुत बहुत। कैसे हैं आप? तो शुक्रिया, आप सुना कैसे हैं? अच्छा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आपने उर्दू टू टर्किश और टर्किश टू उर्दू डिक्शनरी भी तरतीब दी है। इस डिक्शनरी के बारे में प्लीज पहले बताएं। ये एक्चुअली डिक्शनरी जो है, आपको पता होगा कि वहाँ जो तुर्क लोग हैं वो इंग्लिश तो इतनी इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो डायरेक्ट उनका पाकिस्तान के साथ जब रब्ता होता है तो उनको बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं कि जब उर्दू को कैसे, या
तो उनको फिर इंग्लिश सीखनी पड़ती है या फिर उर्दू, तो उर्दू को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वो उनको थ्रू आउट ही जो है पाकिस्तान के साथ बड़ी गहरी मोहब्बत रही है। तो उसको सोचते हुए फिर मैंने वो कंपाइल करना शुरू किया और तकरीबन मेरा ख्याल है मुझे 4-4.5 साल जो है वो लग गए उसको कंप्लीट करते हुए। और फिर जो है तुर्की के सदर अब्दुल्ला गुल ने और पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी ने हिस्सा लिया और मुझे ये एजाज़ बख्शा। कुछ पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात की भी बात करें तो साल 2011 में पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात कैसे रहे, आप किस तरह देखते हैं ताल्लुकात? ये मैं एक चीज़ आपको बता दूं जो हमेशा जो हमें फ़ख्र महसूस इस पे हम करते हैं, पाकिस्तान तुर्की के ताल्लुकात जो है हुकूमत की सतह पर ताल्लुकात नहीं है, ये अवाम की सतह पर ताल्लुकात है। शायद आपको दुनिया में इसकी कहीं नज़ीर नहीं मिलेगी, इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात, इतने गहरे ताल्लुकात हैं और ये तारीख से चले आ रहे हैं जो अब तक मुसलसल जो है बढ़ते ही चले जा रहे हैं। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएँ, जो तुर्क आपको जहाँ भी पाकिस्तानी को मिलेगा वो दिल से और दिल की गहराइयों से आपको जो गले लगा लेगा पाकिस्तानी। बल्कि ये तक कहा जाता है कि पाकिस्तान और तुर्की एक नेशन और दो स्टेट। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जी, यही चीज़ है। और जब तुर्की आप आएँ, कोई भी पाकिस्तानी जब आप देखते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए वो अलहदा वो करते, किसी और कंट्री में आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको टर्की में एजाज़ मिलता है, जो आपको पाकिस्तान को इज्जत मिलती है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। पर आज टर्की में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है कि वाकई में मिसाली है। अगर 10 साल पहले देखें हम तो तुर्की के हालात बिल्कुल कहा जाए पाकिस्तान की तरह से तो शायद गलत ना होगा, बैंक दिवालिया हो रहे थे, उसके साथ साथ करप्शन बहुत ज़्यादा थी। तो किस तरह तुर्की में रिफॉर्म्स आए? ये एक्चुअली देखा जाए जब से जस्टिस एंड डेवलपमेंट बट से इक़्तिदार आई है उस वक्त से लेकर जो है हालात ने बदलना शुरू कर दिया। लेकिन एक्चुअली इससे पहले जब आप 80s में जाते हैं तो उस वक्त जो है मदरलैंड पार्टी थी इनकी, अनाब जिसे ये लोग कहते हैं, उसने एक्चुअली बेस रखी थी एक इसकी तुर्की की इकनॉमिक जो है उसको इम्प्रूव करने की। और उसके बाद जो है वो मौका मिला इसको जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को, उन्होंने फिर जो है वो एक्चुअली वो बड़े पुरखलूस पार्टी है वो तुर्कों की, जो है वो तुर्क चाहते हैं कि वो हमेशा जो है वो आगे बढ़ते रहें, आगे उनकी डेवलपमेंट होती रहे। क्योंकि यूरोपीय आपको पता होगा कि यूरोपीय यूनियन वाले हमेशा तुर्की के साथ वादा करते रहे कि हम आपको यूरोपीय यूनियन में लेंगे, लेकिन आज तक अब उल्टा हिसाब हो गया। टर्की जो है वो देखा जाए तो तुर्क अवाम का तकरीबन 65% जो है यूरोपीय यूनियन में जाना नहीं चाहते, जबकि 80s में आप देखते हैं तो उसमें जाते 85% और 90% के करीब तुर्क जो है वो यूरोपीय यूनियन में जाना चाहते थे। अब हालात जो है बिल्कुल उलट हो गए और तुर्की जो है यूरोप से देखिए इस वक्त इनके जो है डेवलपमेंट की शरह है 8.2 है, ये चाइना के बाद है दूसरे नंबर पर है। बल्कि टर्की का जीडीपी 15th हाईएस्ट जीडीपी है इन द वर्ल्ड, इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है टर्की ने। अगर हम 2001-2002 का मुवाजना करें, ये वो टाइम था जब रिसेशन ने हिट किया हुआ था टर्की को। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर कमाल दरवेश साहब ने एक रिफॉर्म पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस कराई थी। वो रिफॉर्म पॉलिसी क्या थी, ऐसी क्या चीज थी जिसने इस मुल्क का नक्शा बदल कर रख दिया? एक्चुअली वो देखा जाए तो बेस उन्होंने कमाल दरवेश ही ने रखा था, लेकिन जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ने जो है उनका प्रोग्राम जो उस पर पूरी तरह अमल दरामद किया। ये नहीं किया कि अच्छा इस प्रोग्राम पे हम करते हैं, इस पे नहीं करते। उन्होंने बिल्कुल जो है बड़ी सख्ती से उस पर अमल दरामद किया, जिसकी वजह से आप अंदाजा लेंगे 2001 में जो है वो उनकी जो पर इनकम जो थी वो तकरीबन $1800 के करीब थी और इस वक्त जो है $11,000 है। $11,000। अच्छा, 2012 में किस तरह देख रहे हैं डॉक्टर फरकान आप, पाकिस्तान और टर्की के ताल्लुकात किस तरह बेहतर होंगे या पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल किस तरह बेहतर होगी? एक्चुअली देखिए अब हमारी दिली तमन्ना तो ये है कि पाकिस्तान भी तुर्की की राह पर गामजन हो, तुर्की की तरफ तरक्की करे और हमारी दिली तमन्ना यही है, कोशिश भी यही है और अल्लाह करे ऐसा हो जाए। जब ये 2012 में इलेक्शन होंगे तो जाहिर है डेफिनेटली कोई ना कोई नई हुकूमत आएगी। मुझे पता है जो हुकूमत भी आएगी वो एर्दोगान को वो अपने लिए रोल मॉडल के तौर पर देख रहे हैं, तो डेफिनेटली जहाँ से जो भी सियासी लीडर जाएंगे वहाँ पे उनको वहाँ पे ये है कि पॉलिटिकल एकेडमीज़ हैं, वहाँ पे उनको सियासी लीडरों को एक दफ़ा जाके वो एजुकेशन ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल एकेडमीज़ कहीं नहीं है, जिसकी वजह से सियासतदानों को कुछ पता नहीं, कुछ नॉलेज नहीं कि सियासत कैसे की जाए। अगर वहाँ पर जाएंगे वो देखेंगे हालात को, फिर उनको पता चलेगा कि रजब तय्यिप एर्दोगान ने कैसे जो है अवाम पर अपनी हुक्मरानी जो है अभी तक कायम की है और अवाम के दिलों में वो अभी तक जो है बड़ी गहरी मोहब्बत से पहचाने जाते हैं। डॉक्टर फरकान हमीद वाज़ेह तौर पे हमें ये बता रहे थे कि 10 साल के अरसे में एक मुल्क जो कि काफ़ी मुश्किलात में घिरा हुआ था वो बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो गया और अब वो मुल्क 15th हाईएस्ट जीडीपी वाला मुल्क है, यूरोपीय यूनियन में शमूलियत इख्तियार करने के लिए सोच रहा है और इतनी तरक्की कर चुका है। तो अगर आप चाहें, कोशिश करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर फरकान हमीद बहुत शुक्रिया, आपने हमें जियो। मैं एक चीज़ आपको देना चाहता हूँ प्रोग्राम के लिए, आपको पता हो कि टर्की के लिए जो हमारे एज ए गेस्टर के तौर पर हमारे
हमारा ये सुविनियर समझ लें, ये इसको हम लोग ईवल आई कहते हैं, या बिल्कुल उर्दू में हम निकाल सकता हूं? नजर बट्टू कहेंगे। ये देखिए टर्की का फ्लैग भी है और नजर बट्टू भी है, ताकि आपके प्रोग्राम को नजर ना लगे। अमेजिंग, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरकान हमीद आपका। अच्छा, आखिर में हम आपको छोड़ेंगे, आप प्लीज हमें बता दें कि टर्की ज़बान में जियो पाकिस्तान कैसे कहेंगे? यशस्न पाकिस्तान, यशस्न पाकिस्तान, यशस्न पाकिस्तान। कुछ तो सीखा दानिश। यशस्न पाकिस्तान। ये नजर बट्टू सही जगह पे आ गए। मतलब मरियम ने बकायदा मुझसे छीना, ये दे दो, तुम नहीं पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगी। अच्छा सितारा, हम आपकी तरफ आएंगे। अब जाते आते आप हमारी नई नस्ल को, आप खुद भी नई नस्ल है हमारी, अपने हम उम्र लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी नए साल के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड सेकेंडली जो मतलब फ्यूचर के बाद द पास्ट इज ओनली इन योर माइंड, सेट योर गोल एंड गो फॉर इट। थैंक यू सो मच। अच्छा सितारा, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ नए साल में तुमने क्या रेजोल्यूशन बनाया है अपने लिए? बेसिकली मोर हार्ड वर्क, क्योंकि जितना मुझे लोगों ने प्यार दिया, जितना हाउ दे लुक अप टू मी, I am overwhelmed by the response that I am getting, but it means more responsibility for me. सितारा, ये सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन टेक इट इजी, अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना और ज्यादा प्रेशर ना लेना, अच्छी तरह से पढ़ना और अपनी तबीयत का भी ख्याल रखो, ठीक है? जी मलाला, आप बताइए नए साल के मलाला, लिए इतना अहम अवार्ड मिला, कौमी अवार्ड, जिसको अब आपका नाम भी दे दिया गया, अगले साल से अवार्ड जिसको भी दिया जाएगा, जो भी हमारे नौजवान हैं उनको, तो मलाला अवार्ड कहलाएगा। आप ये बताएं कि अब नए साल में इस अवार्ड से हमें या हमारे यूथ को क्या फायदा होने वाला है? तो यूथ को एक बात बताती चलूं कि यूथ का एक मकसद होना चाहिए। यूथ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत एनर्जी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि किस राह पे चलना है, कहाँ पे चलना है। जब एक इंसान को ये पता चल जाए कि यही मेरी मंजिल है और यही इसका रास्ता है, तो फिर उसकी लाइफ सेट हो जाती है। और अगर कोई इंसान कमिटेड हो तो आप समझिए कि वो एक कामयाब इंसान है। और मैंने अपने लिए गोल सेट किया है कि मैं पूरे पाकिस्तान की इंसानियत की खिदमत करूंगी, किसी रंग, नस्ल या मजहब की, इर्रिस्पेक्टिव टू ऑल दीज थिंग्स। और मैं इंसानियत की खिदमत करूंगी, और इसके लिए ये मेरी मंजिल है, और इसके लिए मैंने जो राह चुनी है वो है पॉलिटिक्स। मैं पॉलिटिक्स करूंगी, प्योर पॉलिटिक्स, खालिस। जो भी चीज खालिस हो वही अच्छी होती है, जिस तरह हम घी खालिस थोड़ा सा मुझे बताओ कि किस तरह से तफरी क्या? लेकिन पहले हम अली से लास्ट वर्ड ले लें, अली की रेजोल्यूशन ले लें। जी दानिश, आप ले लें, आप दोनों की काफी ब्रेक में हमारी दोस्ती हो चुकी है, मेरे बहुत वेवलेंथ मिल चुकी है। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहिए? नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं, आई थिंक रेजोल्यूशन शुड बी सिंपल। मेरी रेजोल्यूशन ये होगी कि जो पिछले साल रेजोल्यूशंस बनाई हैं उन्हें इस साल इम्प्लीमेंट जरूर करना है। प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी क्या है? आई थिंक टॉप प्रायोरिटी इस वक्त आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माय कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो कर रहा हूँ, उसके साथ ट्राई टू बी अ बेटर यूथ एम्बेसडर, sleep less on the job and get to office on time. अच्छा जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे। अपने लिए छोटी छोटी रेजोल्यूशन जरूर बना लें कि इस साल अच्छे अच्छे काम क्या करने हैं, कितनी लोगों के काम आना है। नए साल के नए प्रोग्राम के साथ हम कल दोबारा आपके सामने होंगे। मलाला को, अली को, उस्मा को, मरियम को, दानिश को इजाजत दीजिए हमारे साथ। जियो पाकिस्तान।